تاریخ کے قبرستان میں ایک ایسی لاش بھی ہے جسے نہ زمین نے قبول کیا نہ سمندر نے ہضم کیا. ایک ایسا تکبر جس نے خالق کائنات کو للکارا. ایک ایسا حاکم جس کی جابرانہ سلطنت کے سائے میں معصوم بچوں کا لہو بہایا گیا. جو اس کا حکم مانتا وہ زندہ رہتا اور جو نہ مانتا وہ باقی نہ رہتا. اس کے سپاہی گلیوں میں دشت کرتے رہتے. انہی گلیوں کے سائے میں بنی اسرائیل کا وجود مٹتا جا رہا تھا. وہ ایک ایسی قوم تھے جنہیں نہ اپنی جان کا اختیار تھا نہ اپنے آنسوؤں کا. ان سے محلات بنوائے گئے, دیواریں اٹھوائی گئی, شہر تعمیر کروائے گئے, مگر آزادی کا حق تک نہ دیا. ان کی محنت سے مصر کی شان بنی, مگر ان کے جسم زنجیروں میں جکڑے رہے. لیکن یاد رکھو, جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو عرش الہی سے فیصلے صادر ہوتے ہیں. جب زمین تنگ ہو جائے اور آسمان سے قہر برسنے لگے تو فرعون جیسے جابروں کا غرور ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتا ہے. آج کی یہ داستان کوئی قصہ نہیں بلکہ ان آنکھوں کے لیے عبرت ہے جو حق کو دیکھنے سے قاصر ہے. یہ قصہ ہے نیل کی لہروں میں چھپے اس خوفناک انجام کا جس نے رہتی دنیا تک شہنشاہوں کے سر جھکا دیے. مصر, اہرام کا ملک, جادوگروں کا مسکن اور بنی اسرائیل کی غلامی کا گواہ. یہاں کا حکمران فرعون خود کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا. وہ کہتا تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ رب ذوالجلال کی قدرت سے غافل ہو چکا تھا. مگر اسی جاہ و جلال کے بیچ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مشن دے کر بھیجا. ایک طرف وقت کی سپر فورس تھی اور دوسری طرف حق کی وہ للکار جس نے ایوان کفر میں لرزہ طاری کر دیا. مصر کا شاہی دربار, جہاں خوف کا پہرا تھا اور فرعون کا حکم ہی قانون تھا, آج اس دربار میں وہ ہونے والا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا. تاریخ کی سب سے بڑے مارکے کا وقت آن پہنچا تھا. ایک طرف دنیاوی طاقت کا وہ پہاڑ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا, اور دوسری طرف اللہ کے دو برگزیدہ بندے جن کے پاس نہ لشکر تھے نہ ہتھیار, صرف ایمان کی قوت تھی. مگر چہروں پر وہ جلال جو بڑے بڑے جابروں کو تھر تھرا دے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے تخت کے سامنے کھڑے تھے. وہی فرعون جو پکارتا تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کیا, اے فرعون, میں اس رب کا رسول ہوں جو کائنات کا مالک ہے. بنی اسرائیل کو آزاد کر دے, ہمارے ساتھ بھیج دے اور ظلم سے باز آ جا. فرعون نے حقارت سے دیکھا اور طنز کیا, اے موسیٰ, کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے بچپن میں پالا؟ اب تو ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے. فرعون نے رب العالمین کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا, یہ رب العالمین کون ہے؟ یہاں کا رب میں ہوں. یہاں میری حکومت ہے اور میرا ہی قانون چلتا ہے. کیا تم وہی نہیں جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, وہ میری لغزش تھی اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوری استقامت سے کہا, میرے رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی. میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے. سنو,
ये किसी और खुदा की बात कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, अगर तुम हक की पैरवी करो तो तुम्हें भी हिदायत मिल सकती है। फिरौन ने जब दलील में शिकस्त खाई तो गुस्से से बोला, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। चश्मज़दन में वो लकड़ी एक देव कामत और हब्बतनाक अजदा बन गई। उसकी फुंकार से दरबार के सुतून लरजने लगे। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, डर के मारे पीछे हट गया। फिर अल्लाह के नबी ने अपना हाथ दिरीबा में डालकर निकाला तो वो सूरज की तरह चमकने लगा। दरबार की तमाम मशलें इस इलाही नूर के सामने धुंधला गईं। फिरौन बौखला गया, कहने लगा कि ये तो महज जादू है, मैं इससे बड़े जादूगर ला सकता हूं। उसने हुक्म दिया, मिस्र के तमाम बड़े जादूगरों को जमा करो। ऐलान किया गया, आज हक और बातिल का फैसला होगा। मुकाबले का दिन तय पाया। हजारों लोग जमा हो गए। पूरे मिस्र से जादूगर बुलाए गए। मैदान लोगों से भरा हुआ था। जादूगरों ने कहा, पहले तुम डालोगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पहले डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो नजरों का वो धोखा पैदा हुआ कि पूरा मैदान सांपों से भर गया। खौफ का एक समा था। फिरौन के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर मारी, एक हौलनाक आवाज गूंजी। वो असा एक ऐसा अजदहा बन गया जिसके सामने जादूगरों के तमाम मसनूई सांप तनकों की तरह गायब हो गए। वो अजदहा उन तमाम सांपों को निगल गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। जादूगर जो फन जादू के माहिर थे, जो फन की गहराई जानते थे, समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि कायनात के मालिक का मोजिजा है। वो वहीं सजदे में गिर पड़े। फिरौन चीखता रहा, धमकियां देता रहा, मगर वो पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले, चाहे हमें सूली पर चढ़ा दिया जाए। हक वाज़े हो गया। फिरौन का गुरूर खाक में मिल गया, मगर इसकी सरकशी न टूटी। इसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। जब फिरौन ने हक को झुकलाया और बनी इसराइल पर मजालिम की इंतहा कर दी और हक वाज़े होने के बाद भी फिरौन न माना, तो अल्लाह का कहर निशानियां बनकर उतरा। मिस्र की सरजमीन पर वो 5 अजाब नाजिल हुए जिन्होंने फिरौनियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अचानक आसमान से काली घटाएं नमूदार हुई। ऐसी मूसलाधार बारिश और तूफान आया कि मकानात गिरने लगे, बस्तियां डूबने लगीं, घरों में पानी भर गया, खेतियां तबाह हो गईं और पूरे मिस्र में एक चीखो पुकार मच गई। फिरौनियों की अकड़ ठंडी पड़ गई। वो भागे हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। ए मूसा, अपने रब से दुआ करें, अगर ये तूफान टल गया तो हम ईमान ले आएंगे। दुआ हुई, तूफान टल गया, मगर फिरौनियों ने अपना वादा तोड़ दिया। फिरौन और उसकी कौम अभी तूफान से संभले न थे कि आसमान पर टिड्डियों का एक ऐसा स्याह बादल छाया जिसने दिन को रात में बदल दिया। ये लश्कर जिस खेत या बाग पर उतरता, लम्हों में उसे बंजर कर देता, हरियाली का नाम और निशान मिटा देता, दरख्तों की छाल तक चट कर जाते। भूख ने फिरौनियों को तड़पा दिया। उनके पास खाने को एक दाना ना बचा। वो फिर गिड़गिड़ाए, फिर वादा किया, मगर जैसे ही अजाब टला वो फिर सरकश हो गए। अब बारी थी बदन को तोड़ने वाले अजाब की। एक ऐसा अजाब आया जिसने उनका सुकून छीन लिया। उनके अनाज के जखीरों, उनके बालों, बिस्तरों और कपड़ों में ऐसी जुएं और घन पैदा हुए कि उनका जीना हराम हो गया। जिस्मों पर खारिश ने उनके जिस्म लहूलहान कर दिया था। वो न सो सकते थे, न सुकून से बैठ सकते थे।
जिल्लत उनके मुकद्दर में लिख दी गई थी। मगर फिरौन का गुरूर अब भी कायम था। अब कुदरत ने एक अजीब अजाब भेजा, उन पर मेंढकों को मुसल्लत कर दिया। ये कोई आम मेंढक न थे, ये अल्लाह का अजाब था। मिस्र के हर घर, हर बावर्ची खाने और हर बिस्तर पर मेंढक ही मेंढक थे। वो जब खाना खाने लगते तो हांडियों से मेंढक निकलते, जब लेटते तो बिस्तरों में मेंढक पाए जाते। उनके कमरे मेंढकों से भर गए। पूरी कौम उस अजीब व गरीब अज़ियत से चीख उठी। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़े। ऐ मूसा, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे लिए रब से दुआ कीजिए। फिर दुआ हुई, फिर सुकून मिला। मगर बदबख्त कौम ने फिर हक का मजाक उड़ाया और आखिर में वो निशाने इबरत आया जिसने उनकी रूहें फना कर दी। नील का वो शफाफ पानी जिस पर मिस्र की जिंदगी का दारोमदार था, अचानक बदबूदार खून में बदल गया। फिरौनी जब पानी पीने के लिए बर्तन निकालते तो वो गाढ़ा लहू होता। प्यास से तड़पते फिरौनियों के लिए कायनात का सबसे सस्ता रिज्क पानी भी हराम हो गया। मगर उसी नील से जब कोई बनी इसराइली पानी निकालता तो वो शहद जैसा मीठा और साफ होता। हर बार फिरौनी गिड़गिड़ाते और हर बार वादा तोड़ देते। लेकिन अब फैसले का वक्त आ चुका था और फिर तारीख की सबसे तवील और कठिन रात, जब मिस्र की गलियों में सन्नाटा था मगर बनी इसराइल के दिलों में एक हशर बपा था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से निकालकर एक ऐसी सिमत ले जा रहे थे जहां मंजिल का निशान सिर्फ ईमान था। उधर फिरौन के महल में जब यह खबर पहुंची तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। फिरौन कहने लगा, मूसा, तूने क्या समझा कि तू मेरी सल्तनत से जिंदा निकल जाएगा? इसने अपने तमाम लश्करों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। मिस्र का बच्चा बच्चा हथियार उठा ले, आज इन भागे हुए गुलामों का नाम और निशान मिटाना होगा। वो महज एक कौम को पकड़ने नहीं निकला था, वो अपने गुरूर की जंग लड़ने निकला था। पीछे फिरौन का खूनखार लश्कर था, आगे बहरे कुलजम की बेरहम लहरें, सामने मौत का रक्स करता हुआ नीला समंदर था और पीछे से उठती हुई वो गर्द जो फिरौन के लश्कर की आमद का ऐलान कर रही थी। तेज चलो, वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। जमीन उन पर तंग कर दो। फजा नेजों की झिनकार और घोड़ों के हनहनाने से गूंज उठी। बनी इसराइल की आंखों में खौफ उतर आया। वो पुकार उठे, ऐ मूसा, हम मारे गए। आगे गहरा दरिया है, पीछे खूनी दुश्मन, अब बचने की कोई राह नहीं। जब दुनिया के तमाम सहारे टूट जाते हैं तब अल्लाह की नुसरत का मोजज़ा शुरू होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लहजे में जर्रा बराबर लर्जिश न थी। आप अलैहिस्सलाम ने समंदर की लहरों की तरफ देखकर वो तारीखी जुमला कहा जिसने कायनात की तकदीर बदल दी, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही वो असा पानी से टकराया, जमीन लरज उठी। एक होलनाक आवाज के साथ समंदर के सीने में दरार पड़ी। पानी की देव कामत लहरें दाएं और बाएं पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। समंदर की तहों से वो रास्ता निकल आया जो सदियों से पोशीदा था। बनी इसराइल सहरज़दा हालत में इस आबी दीवारों के दरमियान से गुजरने लगे। ये नजारा देखकर इंसानी अक्ल मफलूज हो गई। मगर फिरौन की आंखों पर किब्र और गुरूर की पट्टी बंधी थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दूसरे किनारे पर पहुंच चुकी थी। फिरौन ने जब देखा कि रास्ता खुला है तो उसने अपने घोड़े को उसी मौत के रास्ते पर डाल दिया। इसका पूरा लश्कर, उसकी ताकत, उसका गुरूर, सब के सब समंदर के शिकम में दाखिल हो गए। जैसे ही आखिरी फिरौनी सिपाही उस रास्ते के वसत में पहुंचा, कायनात की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। पानी की वो दीवारें जो रब के हुक्म से रुकी थीं,
अब रब ही के हुक्म से कहर बनकर टूट पड़ी। एक ऐसी गरज जिसने फिरौन के कान फाड़ दिए। समंदर का बेरहम तलातुम उसके लश्कर को रद्दी के टुकड़ों की तरह बहा ले गया। जब फिरौन के नथनों में मौत का नमकीन पानी भरने लगा, जब गुरूर की इमारत जमीन बोस हो गई, तो वो जाबिर पुकारा, मैं मानता हूं कि मूसा और हारून के रब के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसके नापाक जिस्म को लहरों ने साहिल पर फेंक दिया। वो जो कहता था मैं खुदा हूं, आज एक बेजान लकड़ी की तरह साहिल पर पड़ा था। अल्लाह ने उसके नापाक जिस्म को महफूज कर लिया ताकि रहती दुनिया तक कोई दूसरा फिरौन सर ना उठा सके। नील की ये लहरें आज भी पुकार पुकार कर कहती हैं, ताकत अल्लाह की है, बादशाही अल्लाह की है और फतह सिर्फ हक की है। आज भी काहिरा के म्यूजियम में वो खुश्क लाश मौजूद है जिसकी आंखें शायद आज भी नील की लहरों को तलाश कर रही हैं। ये इस इबरत का नमूना है कि चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। फिरौन मर गया, मगर फिरौनियत आज भी जिंदा है। अब ये हम पर है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हैं या फिरौन की रविश इख्तियार करते हैं।